چلیے بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ صحرائے تھر کی خوبصورتی شاعری کی زبان میں آرٹس کونسل میں شاعر بھرومل عامرانی کی کتابوں کی رونمائی کی تقریب جاری۔ سابق صوبائی وزیر تعلیم و ثقافت سید سردار علی شاہ کی شرکت۔ سابق صوبائی وزیر نے کہا کہ کتاب میں تھر کے صحرا کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے سید زبیر راشد۔ آج بالکل دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں کراچی آرٹس کونسل پاکستان میں، اور آج یہاں پر جو ہے سندھ کے صحرا سے متعلق جو ہے ایک معروف شاعر کی کتاب کی تقریب رونمائی جو ہے منعقد کی گئی ہے، جس میں بطور مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر تعلیم و ثقافت سید سردار علی شاہ نے شرکت کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، آپ سے ان کی بات کراتے ہیں۔ بڑی خوبصورت طریقے سے کتاب کو جو ہے تخلیق کیا گیا ہے، اس میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں یقیناً صوبہ سندھ کی جو صحرا ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ سردار شاہ صاحب مجھے بتائیے گا اس کتاب آپ نے اس کتاب کو تھوڑا بہت پڑھا، کتنی اس کتاب نے آپ کو متاثر کیا؟ جی، یہ اصل میں یہ کتاب جو ہے وہ ایک شاعر کی نہیں ہے، یہ بیسیکلی راجستھان یعنی انڈیا میں جو اس وقت ہے، اور ہمارے پاس جو صحرائے تھر ہے اس وقت موجود، وہاں پہ جو قدیم لوک ادب ہے اس میں جو شاعری ہے، لوک گیت ہیں جس کے اور دوہے ہیں، یہ اس کی کمپائلیشن ہے جو صدیوں سے سینہ بسینہ وہاں کی گانے والی عورتیں گاتی رہی ہیں، وہاں پہ مرد گاتے رہے ہیں، مگر وہ لوگوں کو اس کی میننگ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی معنی کیا ہے۔ تو یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ بڑے زبردست انداز میں آئے ہیں۔ آج اس کی رونمائی تھی، اور تھر جو ہے وہ اپنی حساکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پہ مور کے رقص بھی ہیں، وہاں پہ گیت بھی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ساون کے جھولے بھی ہوتے ہیں اور ساون تیج کی روایتیں بھی ہیں۔ تو تھر جو ہے اوپن میوزیم ہے فطرت کا، ایک حسین سا ایک علاقہ ہے، اس کی اپنی لوک روایتیں ہیں جو اس کتاب میں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ تو خود کتابوں سے بڑا دلی لگاؤ رکھتے ہیں، آپ کی آج کل کتابیں کون سی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں؟ کوئی ایک ایسی کتاب جو کہ آپ لکھنے جا رہے ہوں یا متعارف کروانے جا رہے ہوں؟ جی، آج کل تو الیکشن کا سیزن ہے، تو الیکشن میں ہوں، مگر کتاب کے ساتھ میری پرانی دوستی ہے، تو میں اپنے بیڈ روم میں بھی اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بھی کتاب رکھتا ہوں۔ اچھا سر، کیونکہ آپ وزیر ثقافت بھی تھے، تو فلمی سٹار جو ہے مہوش حیات آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں، آپ وزیر ثقافت رہ چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے مہوش حیات کے لیے؟ وہ اپنی سالگرہ آج جو ہے بنا رہی ہیں۔ میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس کا جنم دن ہے، اور جیتی رہے، اور پاکستان کے میں آرٹ اور کلا کے حوالے سے اور فلموں میں اپنے جلوے دکھاتی رہے۔ بہت شکریہ جی۔ سابق صوبائی وزیر تعلیم و ثقافت سید سردار علی شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تقریب رونمائی میں ایک کتاب کی آج انہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، تاہم انہوں نے اداکارہ مہوش حیات کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی۔ جی، کراچی کے ہر علاقے کے مسائل ایک جیسے ہیں، چاہے پوش علاقے ہوں یا مضافاتی۔ گیس نہ آنا اور گٹر ابلنے کا مسئلہ شہر کے ہر حلقے کا مسئلہ بن گیا۔ NA 238 کے مسائل پر ایاز رانا کی رپورٹ دیکھیے۔ کے دیگر علاقوں کی طرح NA 238 میں بھی مسائل کے انبار، سیوریج نظام درم برم، گیس غائب اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ NA 238 کی کراچی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کہنے کو تو پوش علاقہ ہے، لیکن یہاں کے حالات ہیں مضافاتی علاقوں کی طرح۔ گھروں میں کئی روز سے گیس غائب ہے، خواتین گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ بھائی ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے اب تو تقریباً، اور دیکھیں گیس بالکل آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھایا، بالکل چولہا بھی آ ہی نہیں رہی، مطلب ایک تو ہلکی پھلکی جو آتی ہے، 8 دن سے اوپر ٹائم ہو گیا ہمارے پاس گیس نہیں ہے، پورے علاقے کی گیس بند ہے۔ اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بیمار لوگ ہیں، ہم ان کے لیے نہ کھانا پکا سکتے ہیں نہ گھر پہ روٹی، اور جو گیس سلنڈر ہے وہ 2-2 ہزار روپے کا گیس کا سلنڈر ہمیں بھرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گیس مسائل کے ساتھ ساتھ یہاں کی سیوریج لائنیں بھی تباہ ہو چکی ہیں، سڑکیں بھی زبوحالی کا شکار ہیں۔ یہاں گیس کا بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے، یہاں گیس نہیں آ رہی، وہ بول رہے ہیں جتنی کمپلینیں ہم نے کی ہیں، کہہ رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی یہاں گیس نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سیوریج کی لائن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے پانی وہ کہہ رہے ہیں گیس لائن، تو یہ ان کا اداروں کا کام ہے، آ کے کام کریں، ہم تو کمپلین کروا کے تھک گئے۔ ایک عرصے دراز سے ہمارے کاروبار بھی یہاں پر ٹھپ ہیں اس پانی کی وجہ سے۔ آئے دن یہاں پر پانی آ جاتا ہے گٹر کا، اور بعض یعنی زیادہ تر یہاں پر جمعے والے دن اکثر یہاں پہ جمعے کو پانی پوری گلی بھر جاتی ہے یہاں پہ۔ رہائشیوں کے مطابق علاقے میں 2008 کے بعد سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ موسم سرد ہوتے ہی گیس بحران بڑھنے لگا، گھریلو اور کمرشل صارفین کو گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ ہوٹل مالکان کا شکوہ ہے کہ لکڑیوں اور گیس سلنڈر کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے۔ فاران خان کی رپورٹ دیکھیے۔
गैस की किल्लत ने कराची वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी शदीद परेशान। होटल मालकान कहते हैं कि गैस प्रेशर में कमी का सामना होता है। लकड़ियां और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अखराजात बढ़ने से कारोबार तबाह हो गया है। हर कोई परेशान है। जिस तरह से अपना गैस का बहरान ही एक समझ लो आप, भले सर्दी, अब तो सर्दी में तो खैर पीक हो जाता है वैसे, और हर जगह का यही मामूल चल रहा है। गैस कभी सुबह किसी घरों में है, रात को नहीं आती, अगर रात को है तो सुबह में अपने उनका टाइमिंग सेट करी हुई है। तो हमारा भी यहाँ पर काम था, हर कोई परेशान था। फिर टैक्सेस डबल ट्रिपल टैक्सेस होते थे, तो हमने बेसिकली जो है ना कमर्शियल गैस का सिस्टम ख़त्म कर दिया। कमर्शियल सार्फिन के मुताबिक मुतादिद शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। गैस की बिलातातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फरहान खान, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात करीब आते ही शहर भर में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गईं। NA 240 में भी उम्मीदवार मुतहरिक हैं। रामसवामी और जुबली के पानी गैस से महरूम मकीनों को इंतखाबात के बाद भी हालात ना बदलने का खदशा है। तफसीलात सबा परवेज की रिपोर्ट में। इंतखाबात नए, मसाइल वही पुराने। शहर भर में इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी जारी है। NA 240 में उम्मीदवारों ने वोटर्स से राब्ते शुरू कर दिए। शहरियों का शिकवा है कि उम्मीदवार सिर्फ वोट के वक्त दिखाई देते हैं, फिर कोई उम्मीदवार मसाइल हल नहीं कराता। NA 240 के कई इलाकों बशमोल जुबली में पानी और गैस के मसाइल हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि पानी की लाइनों में बदबूदार पानी आ रहा है। गैस की किल्लत भी मामूल बन गई। गैस का मसला तो 2-3 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है। गैस तो आता ही नहीं है, लोग गैस भरवाने जाते हैं। घरों में इतने परेशानियां थे, अब देखो 10,500 बिल आया, ये भरना है। रात 10 बजे जाता है और सुबह 6:30 आता है, और बच्चों को खाना नाश्ता करने में भी मुश्किल होती है, और हम वैसे भी परेशान हो जाते हैं। 12 बजे भी नहीं होता, जब बच्चे आते हैं तो बाहर से लाना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। रामस्वामी के मकीन 2 साल से गैस की अदम फराहमी से परेशान हैं। तकरीबन 2-3 साल हो गए इसको कि इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हर चीज़ में अब बरमे से लोग भर भर के पानी लाते हैं, पीने के नहीं है। अब इस्तेमाल के लिए तो वैसे वो लूज़ कर लेते हैं, मगर पीने के लिए तो बहुत ही परेशानी होती है, लोग भर भर के वहाँ से लाते हैं। काफ़ी टाइम से ये पानी का मसला, हम लोग तो फिल्टर का पानी खरीदते हैं। 40 रुपए के 50 रुपए के हमें महंगा पड़ता है, महीने के लगा लो 2500-2000 रुपए पानी के पड़ जाते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि उम्मीदवार वोट तो मांगे, लेकिन मसाइल के हल के लिए लाए अमल भी तैयार करें। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सबा परवेज, सिटी 21। पार्टी कराची समेत सिंध भर में 19 कौमी और सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार लाने में नाकाम हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने अपने होम ग्राउंड सिंध में कौमी असम्बली की 61 नशिस्तों में से 8 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन से कबल ही शिकस्त तस्लीम कर ली। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों में से 119 पर ही उम्मीदवार नामजद कर सकी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने पूरे सिंध में कौमी असम्बली की सिर्फ 2 नशिस्तों पर ही खवातीन उम्मीदवारों को नामजद किया है। एंटी करप्शन ने एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी बिल्डी शाह करीम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। महकमे ने अकबर अली दायो का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक महकमा बल्दियात सिंध की जानिब से अकबर अली दायो को जाली अफसर करार देकर कार्रवाई का फैसला हुआ था, लेकिन वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी अहमद ने सिंध काबीना का हिस्सा बनते ही अकबर अली दायो पर नवाजिश करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी बुलड़ी शाह करीम तैनात कर दिया गया। इस तैनाती के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी और रीजनल डायरेक्टर से सर्विसेज रिकॉर्ड भी मांग लिया है। कराची में ट्रैफिक पुलिस अफसर को वकील के भांजे का चालान करना महंगा पड़ गया। सिटी कोर्ट में वकला ने पुलिस अफसर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिटी कोर्ट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। वकला के तशद्दुद का एक और वाकया। तशद्दुद के शिकार पुलिस एहलकार ने सारी कहानी बयान कर दी। PIB कॉलोनी ट्रैफिक सेक्शन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 2 रोज कबल 3 हट्टी चौक पर 14 साल बच्चे को मोटरसाइकिल चलाते हुए रोका और चालान के बाद वालिदैन को आगाह किया, जिस पर बच्चे के मामू जो मुकामी वकील हैं उन्होंने बदतमीजी की और दूसरे दिन अदालत में मेरे खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। 5 जनवरी को मैं सिटी कोर्ट पहुँचा तो कुछ वकला ने मुझे घेर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। ये एक अनोखा वाकया है क्योंकि वो वकील का एक भांजा था, उन्होंने कोर्ट तक मामला लेकर गया। कल मैं कोर्ट गया हूँ,
हूँ तो वो प्री प्लानिंग से मेरा इंतज़ार में थे शायद, तो वो मैं गया हूँ कोर्ट के मना वहाँ मना हेयरिंग थी मेरी, मैं गया तो उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, जो है मेरे जो वर्दी को मना फाड़ा आपके सामने। यूसुफ ने मजीद बताया कि मैंने सिटी कोर्ट थाने में 2 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने उनके खिलाफ मैंने FIR कटाई, जो मेरे को कानून मैंने इजाज़त देता है। जो वकीलों से मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के साथ ये जो मसले को बढ़ाए नहीं, ये फोर्स और वकला का जो मामला नहीं बढ़ाए, आप इसके ऊपर तहकीकात करें, मेरे को बुलाएं, जहाँ आप बुलाओ मैं आने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल जो इसमें है इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सब इंस्पेक्टर यूसुफ ने आला हुकाम से अपील की है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। अवामी सवारी मजीद महंगी हो गई। यामाहा की तमाम मोटरसाइकिल्स की कीमत में 14,000 रुपये इजाफा कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल अलायंस के सीनियर नायब चेयरमैन अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि इस वक्त मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफे की कोई वजह नहीं थी। डॉलर सस्ता होने पर तो कीमत में कमी होना चाहिए थी। कंपनी के मुताबिक यामाहा YBZ DX की कीमत 4,54,000 रुपये और यामाहा YBR की कीमत 4,66,000 पर पहुंच गई। YBR G ब्लैक 14,000 इजाफे से 4,85,000 और यामाहा YBR G मैट 4,88,000 रुपये की हो गई। इस्लामी जमीयत तालिबान की जानिब से शहर के निजी हॉल में नुमाइश का इनेकाद किया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ताहा मालिक रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में तालिबात की सलाहियतों के इजहार के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। फैमिलीज स्टूडेंट्स एक्सपो दी क्वेस्ट 2024 में शहर भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात की तालिबात ने शिरकत की। इस मौका पर तालिबात के दरमियान फोटोग्राफी, रील मेकिंग, शायरी और मुकाबला मुसव्वरी का इनेकाद भी हुआ। एक्सपो में फलस्तीन पर इसराइली जारियत के मौजू पर मुज़ाकरा भी हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा कि बरसों से मुल्क में मखसूस तबके ने हमारी नस्लों को गुमराह किया और मायूसी फैलाई। अब हमें इस तबके को शिकस्त देना और मुल्क को आगे बढ़ाना है। हमारे मुल्क में 76 साल से जो एक मखसूस किस्म का टोला, चाहे वो सियासी और क्या वडेरे और क्या जागीरदार, इन सब लोगों ने मिलकर जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, जो हमारी नई नस्ल को बेराहरो किया है, उनको मकासद से दूर किया है और उनमें मायूसी फैलाई है और लूट कर खाया है। उसके नतीजे में बजाय इसके कि हम हिम्मत हार लें, हम मैदान छोड़ दें और हम में से हर एक की तमन्ना ये हो कि किसी तरह इस मुल्क से निकल जाएं, ये अप्रोच मजीद तबाही फैलाएगी। तकरीब के इख्तिताम पर अमीर जमात इस्लामी कराची ने तकरीब में मेहमानों को शील्ड तकसीम की और खुद नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रजी से खुसूसी शील्ड वसूल की। कैमरामैन मनान के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं कि तारीख ने खुद को 28 बरस बाद फिर दोहराना शुरू कर दिया। 1996 का कैलेंडर 2024 में कारआमद हो गया। कैसे, ये जानते हैं इस दिलचस्प रिपोर्ट में। तारीख ने माजी का एक और दरीचा खोल दिया। रवां बरस के कैलेंडर ने करोड़ों अफराद को माजी की याद दिला दी। हैरत अंगेज तौर पर 1996 का कैलेंडर दोबारा काबिल इस्तेमाल हो गया। अगर आपके पास 28 बरस पुराना कैलेंडर है तो बिला झिझक इसे सामने रख लें। 1996 की तरह 2024 भी लैप एयर है। दोनों के आगाज का दिन पीर और आखिरी मंगल है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 90 की दहाई की यादों को दोबारा ताज़ा करने वाले चंद मंचलों ने 1996 और 2024 के कैलेंडर्स का मवाजना किया है। 1996 की तरह रवां साल भी अमरीकी सदारती इंतखाबात होंगे और हैरान कुन तौर पर ओलंपिक्स गेम का इनेकाद भी किया जाएगा, अगरचे रवां साल की तारीखें मुख्तलिफ हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।